Okay, so let's begin. So this is a new chapter in equity. It is Introduction to Equity Valuation. This is chapter number 5. They call it learning module. ये लोग chapter नहीं बोलते, learning module बोलते हैं. So this is LM5, Introduction to Equity Valuation. And इसके बाद there are 2 more chapters on valuation, LM6 and LM7. इसका मतलब roughly we are going to spend around a month in chapter number 5, 6 and 7. Introduction to Equity Valuation followed by 2 other chapters. And anyways, entering college or generally, you might have heard a lot about valuation, equity valuation कैसे होता है, कैसे नहीं होता है. So if I was sitting in your place, I would have been really very goofed up that equity valuation जो है वो सीखने वाले हैं, ठीक है ना. So I want that particular interest to be there so that you can really take the benefit of it apart from what is written in the chapter. How do we start the same? Let's start it this way. There'll be some research required in between, okay? Because I will forget names and numbers of what I am trying to recollect and talk about. In the morning today, I had to go for a lot of blood tests, okay? And you will see in my arm, ये अभी भी blood test का ये लगा हुआ है. तो blood test में that guy puts a needle and obviously he takes around 7 or 8, tubes out. And उसके बजाय in 2003 there was this female by the name of Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, title is easy to remember. So Elizabeth Holmes, Stanford dropped out. So she came out with a particular presentation. What? Why put needle on your arm? Why give so many tubes of blood for the purpose of tests? Just give a finger. We'll prick the finger once. 1 drop of blood will come out on something called, she called it nanotainer. अपने container बोलते हैं ना? She called it nanotainer. Okay. And then she had a desktop which is called Minilab. बोला वो मेरा proprietary है. हम लोग उस पर आपका 1 drop blood डालेंगे और सारा का सारा टेस्ट जो है उसका रिपोर्ट्स इंस्टेंटली 45 मिनट्स में आ जाएगा. You don't have to wait for reports. So number 1, fast. Number 2, cheap. Number 3, convenient. Fast, cheap, convenient. I think story absorb करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा. It's totally communicable कि अपने क्यों इस तरह से टेस्ट कराते हैं. अपने को केवल 1 फिंगर देना चाहिए, वो प्रिक होगा, 1 ड्रॉप आएगा और उससे टेस्ट हो गया. 45 मिनट्स में रिजल्ट. She raised around, I don't remember the figure, around $10 million for this particular project. $10 million she raised. She was a Stanford dropped out. Those great companies who have those great individuals जो लोग ड्रॉप आउट करके एक कल्ट बना दिए कि यार ये ड्रॉप आउट है. आई एम टॉकिंग अबाउट बिल गेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जकरबर्ग. ये लोग दोनों हार्वर्ड ड्रॉप आउट है, इन केस यू आर नॉट अवेयर. एंड यू नो व्हाट मार्वेलस दे हैव डन. तो एक बाजार में एक वो फैल गया कि लाइक ओके कोई हार्वर्ड से स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट करता है तो यार देयर इज अ क्रेडिबिलिटी दैट द पर्सन इज कैरिंग. ठीक है. अभी देयर इज अ पर्टिकुलर हेज फंड व्हिच हैज कोलैप्स्ड इन यूएस इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है. सिचुएशन अवेयरनेस दैट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय अ ड्रॉप आउट फ्रॉम ओपन एआई. ओपन एआई का ड्रॉप आउट था 24 साल का. एंड दिस गर्ल हुम आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ होम्स, ये 19-year-old थी. Forbes magazine reported that she is the youngest ever billionaire in the history of the planet. ठीक है. The only problem was that those tests did not work. टेस्ट का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था. And nobody cared to check. Why? Because Stanford. कौन चेक करेगा? सही बोल रही होगी. ठीक है. नैनोमीटर ये वो क्या प्रेजेंटेबल है, खड़े होके वो बोल रही है एंड उसका वैल्यूएशन कर दिया गया whatever $40 billion or whatever the valuation of the company was made. The name of the company was what? Theranos ऐसा कुछ. Therapy plus diagnosis. Okay, Theranos करके. So let's understand that बाजार में ये होता रहता है wherein there is a particular cult going on that SpaceX is going to do wonders. जैसे अपने मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वैसे SpaceX में अपने मार्स पे ट्रैवल करेंगे. You know. And
they will do what not in the field of AI by the way of Grok, and he has such a tremendous personality, Elon Musk, and वगैरह वगैरह ऐड कर दो, and you become a company with a $3 trillion valuation. $3 trillion that happens even now. कोई सोचेगा सा उस समय हुआ होगा 2003-4 में, अब थोड़ी ऐसा होता है, ठीक है, लाइव अपने सामने ये होता रहता है. The introduction to equity valuation chapter is trying to tell you that do not be fooled by greatness or great product. A great company is not necessarily a great investment. I repeat, a great company is not necessarily a great investment, because maybe उसका जो greatness है वो hyped है such that उसका जो price है it is so high that it is not worth paying for it. We should not pay for it. So we will have to therefore calculate ना कि उसका value क्या होना चाहिए. सर अगर आप बोल रहे हैं कि प्राइस जो है बहुत हाई है तो आप तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको, एंड दैट इज वैल्यूएशन. ओके, दैट इज वैल्यूएशन. क्या मैंने शुरू में 5 मिनट्स बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ एलिजाबेथ होम्स टाइम वेस्ट किया है? नॉट एट ऑल, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. क्योंकि नॉट द स्टोरी बट दे हैव टॉक्ड अबाउट कल्ट इन्वेस्टिंग. ओके, कल्ट इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप किसी न किसी बड़े जन को बहुत इंटेलिजेंट मानते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पेडिग्री और बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, and because of the way he speaks and the way he's talking about new stuff, he shows a vision, and based on that there is a cult around the person, and accordingly people are ready to pay whatever price, whatever. Okay, valuation goes for a toss. Okay, this is how valuation takes place in real life by many people. It runs for a while, it is successful, and you feel that FOMO, fear of missing out. आपको लगता है यार हम लोग भी कर लेते, सर ज्ञान दे रहे थे फालतू में क्लास में, ठीक ही तो अधिक चल रहा है. ओके, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड द एंटायर थिंग फेल्स. द सेकेंड स्टोरी दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट, इन्होंने जो बात की है टेक्स्ट में, ये तो टेक्स्ट के अंदर एग्जाम्पल दिया ब्लू बॉक्स में, थोड़ा सा और टाइम लगाते हैं उसमें. 2020-19 के पहले गेमिंग पार्लर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. आप इंडिया में भी याद करेंगे, यू मस्ट हैव बीन इन क्लास वट एवर 8-9, ठीक है, या 7-8 डिपेंडिंग अपॉन वे यू आर राइट नाउ. तो गेमिंग पार्लर्स बहुत पॉपुलर थे. ओके, जो वीडियो गेमिंग पार्लर्स होते हैं जिनमें जाके अपने वीडियो गेम खेलते थे. वी कुड बाय वीडियो गेम्स, वी कुड बाय कंसोल्स एंड ऑल दैट. तो यूएस में देयर वाज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ गेम स्टॉप. क्या नाम था? गेम स्टॉप. देयर वाज अ कंपनी, एंड ये गेम स्टॉप कंपनी बहुत पॉपुलर था. इट वाज अ फिजिकल ब्रिक एंड मोटर स्टोर which was selling games, selling consoles and so on. And obviously US is ahead of the curve. तो 2017-18 से ही उसका स्टॉक गिरना चालू हो गया, because it was found that people online games खेल रहे हैं, ठीक है, people are no longer going to go to physical stores for the purpose of purchasing. Making sense to you? तो 2017-18 से उसका दाम गिरना चालू हो गया था, to the extent that around 2019 the stock was trading at around $3 to $5, around $3 to $5, $3 $5 करीब दाम हो गया. This excessive fall of the stock was aggravated by hedge funds shorting the stock. यानी जिन लोग को लगता है कि स्टॉक गिरने वाला है, they should buy the stock or sell the stock. Sell the stock. जिनको लगता है स्टॉक का दाम गिरने वाला है, they will obviously sell the stock ना. तो अगर आप किसी से लेके बोरो करके स्टॉक को बेचते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग. जैसे आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर्स है और लॉन्ग टर्म है, मैं होल्ड करूंगा. अब तुम मेरे पास आए, बोले कि सर आपके पास तो पड़ा हुआ है शेयर, तो आप मेरे को एक बार उधार में दे दीजिए शेयर, लेंड मी द शेयर एंड आई विल गिव इट टू यू आफ्टर 6 months or 1 year. तुमने क्या किया, मेरे से शेयर बाय नहीं किया, बोरो किया, बोरो, यू पे मी अ सर्टेन इंटरेस्ट, एंड तुमने वो शेयर जाके बाजार में बेच दिया. दैट्स कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. व्हाट इज कॉल्ड? शॉर्ट सेलिंग. कि मेरे को बेचने का मन था, तुमको बेचने का मन था, बट तुम्हारे पास शेयर था नहीं ना, तो कैसे बेचेगा, तो बोरो करके बेच दिया. वाई? बिकॉज यू आर बेयरिश, यू फील द प्राइस विल वॉट फॉल, एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा ओपिनियन ये है कि 6 महीने 3 महीने में दाम जोर से गिरेगा, तो नीचे खरीद लूंगा और खरीद के सर को लौटा दूंगा. सर को कोई फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज सर के तो पास वो शेयर था, वापस से आ गया, और सर को भाड़ा मिल गया बीच में 3 महीना 6 महीने का, ठीक है, वगैरह. दैट्स कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. दैट्स कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग माने सेलिंग समथिंग दैट यू डोंट ओन बाय बोरिंग द सेम. तो जो हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स का बाप, ठीक है, बिकॉज आई कांट डाइवर्ट इनटू हेज फंड्स राइट नाउ. जो हेज फंड्स है, जैसे म्यूचुअल फंड जो अपने कंट्री में है ना,
ये लोग केवल बाई करते हैं, क्या करते हैं, बाय, दे कांट सेल, बहुत ही कम वो लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लिमिटेशन है। बट जो हेज फंड्स है वो लोग धड़ल्ले से सेल करते हैं, दे कैन गो शॉर्ट, ठीक है, टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। तो बहुत सारे हेज फंड्स ने देखा कि गेम स्टॉप तो बंद होने वाला है, बिकॉज फिजिकल पार्लर्स में कोई जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये चलेगा नहीं, ये बिजनेस इज डूम्ड एंड देयरफॉर ये गिरने वाला है दाम। तो वो जो भी दाम था उसका $70-80, वहां से लोगों ने बेचना चालू किया, और बेचते बेचते उसका दाम क्या हो गया, $3-5, $3 $5 दाम हो गया 2019 में। नाउ देयर वाज दिस गाय कॉल्ड माइकल बरी, a few people might have heard the name Michael Burry. He is called the Big Short guy. Big Short was a movie which was released after the GFC, Global Financial Crisis of 2008. So 2008 में you may be aware about the fact that US में there was a housing crash. There was an Indian movie built on the same by the name of Badmaash Company, Shahid Kapoor. Okay, so I will not elaborate upon that because too much diversion हो जाएगा. तो Michael Burry was the person who anticipated that housing market crash होने वाला है, and he took a lot of short position on housing and made billions. Okay, he made billions, and books have been written, documentary has been written, movie has been created on the movie name is Big Short. तो he has a lot of name, बड़े बाजार में बहुत fan following है उसका माइकल बरी का. तो माइकल बेरी, आई डोंट रिमेंबर द टाइम, समवेयर अराउंड 2018 और 19 का बिगिनिंग, ही सेड दैट यस, गेम स्टॉप का जो बिजनेस मॉडल है, वो जो धंधा कर रहे हैं ना, ओके, फिजिकल स्टोर्स में गेम बेचने का, वो मॉडल फ्लॉड है, वो मॉडल चलेगा नहीं। बट उसके बैलेंस शीट में जो एसेट्स है, उसका फिजिकल स्टोर्स भी तो है। सोचो, मेरा अगर 50 स्टोर्स है, फिजिकल स्टोर्स जो मैं ओन करता हूं, दैट इज रियल एस्टेट, दैट इज रियल एस्टेट ना। आई एम ओनिंग स्टोर्स, 2000 स्क्वायर फीट का स्टोर्स है बॉम्बे में, पुणे में, बैंगलोर में, कैलकाटा में, तो वो स्टोर्स का तो रियल एस्टेट वैल्यू है। चलो ये बिजनेस सपोज खराब होगा, तो उस केस में तो बैलेंस शीट में एसेट्स है, तो वो एसेट्स तो बिक सकते हैं। तो अगर वो कैलकुलेशन करें तो कहीं पे भी $3-5 नहीं आ रहा है, द प्राइस शुड बी मोर। दैट्स व्हाट बरी सेड, माइकल बरी। ही सेड दैट यस, खराब कंपनी है, बट अभी जो दाम हो गया है ना यार, ये दाम भी नहीं होना चाहिए। एंड माइकल बरी इज फॉलोड बाय नंबर ऑफ पीपल, सो देयरफॉर सम पीपल माइट हैव बॉट, बट देन द बिग पीपल आर शॉर्टिंग द स्टॉक मोर, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड इज दैट इसमें देयर वाज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ च्यू, CHEW। तो च्यू, आई थिंक माई नेम इज करेक्ट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सारा चल रहा है, लोग हेल्प कर रहे हैं, बट आई एम नॉट हैविंग द पेशेंस ऑफ लुकिंग एट देयर क्या बोलते हैं मैसेजेस राइट नाउ, तो अपने फोकस करे जो बोल रहा हूँ। च्यू नाम की कंपनी है ना, च्यू तो एनिमल्स करते हैं ना, तो पेट जो है ना, तो पेट स्टार्टअप था वो, कि वो जो माने डॉग्स एंड पेट्स जो लोग कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर स्टार्टअप था च्यू। एंड उसमें देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड, कैन यू जस्ट चेक आउट द नेम ऑफ द पर्सन, च्यू। ओके, च्यू वाज द कंपनी, पेट का कोई स्टार्टअप था उसमें। एंड दिस गाय गॉट इन्वॉल्व्ड इन गेम स्टॉप। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ द गाय? व्हाट वाज द नेम ऑफ द गाय? Cohen, whatever. Ryan Cohen, RYANCOHEN, okay, Ryan Cohen। और स्टार्टअप का नाम च्यू ही था क्या? या तो च्यू वॉज अ पेट स्टार्टअप, यू नो, एंड रायन कोहेन वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज ही मेड बिलियंस इन दैट स्टार्टअप। होता है ना, स्टार्टअप क्या होता है, एक विजन दिखाते हैं लॉन्ग टर्म, और अगर वो विजन सक्सेसफुल हो जाता है, दे सेल इट ऑफ एंड दे मेक अ ग्रेट मनी, एंड लोग बात करते हैं यार क्या बुद्धिमान आदमी है, करेक्ट है। So Ryan Cohen was the guy who made a lot of money, and this guy also took a position in GameStop. वो GameStop में पोजीशन ले लिया, यानी बाई कर लिया। तो नाउ द मासेस नो, ओ रायन कोहेन घुसा इसमें, वही च्यू वाला। ओके, इसका मतलब लगता है द स्टॉक हैज दम, ठीक ही बोल रहा है ये लोग। तो अकॉर्डिंगली मोर पीपल गॉट कन्विक्शन। ये 2019 चल रहा है सारा, अभी कोविड हुआ नहीं है। देन कोविड स्ट्रक, और कोविड स्ट्रक होने से तो बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी गेम स्टॉप और ज्यादा ग्रेट हो गया कि और ज्यादा डूब गया, बिकॉज अब तो और नहीं जाएंगे लोग, तो और डूब गया, और शॉर्टिंग, ठीक है। तो नाउ दैट टाइम जो शॉर्ट पोजीशन है स्टॉक में, दैट बिकेम अराउंड 125% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी कोई कंपनी ने बैलेंस शीट में से 1 लाख शेयर्स इशू किया, कितना, 1 लाख शेयर्स, जो बैलेंस शीट अपने सब देखे हुए हैं।
and number of shares which have been shorted is 1,25,000. कितना? 1,25,000. You will feel how? Because किसी से borrow करके बेचा, फिर वो वापस से lend करके वापस से बेचा बने 125% short position हो गया था, and the stock was really pathetic. Ryan Cohen over there, the news came that he is joining the board of the company. माने he's coming into the management. अभी तो वो बाई किया था शेयर, अब वो कंपनी को चलाएगा, ये न्यूज आया. So that's a massive news because this guy is a turnaround specialist, and if he is going to run the company, maybe he'll do some turnaround story of the company. होता है ना, turnaround transformation करेगा कंपनी का. That thing gained ground. So we are right now in 2021 जनवरी में पहुंच गए हैं. ये सारा इवेंट होते 2021 का जनवरी. इमेजिन यू आर सिटिंग एट होम, ठीक है, करेक्ट. 2021 शायद सेकेंड वेव चालू हुआ था कोविड का, तो 2021 के जनवरी में खड़े अपने. एंड देयर इज अ फेमस यूट्यूबर, ओके, अ मार्केट मेनिया बाय द नेम ऑफ कीथ, क्या नाम था उसका यार, चेक करो ना इसका. इन गेम स्टॉप, हु वाज द गाय, सोशल मीडिया वाला गाय, गिव मी द नेम के बिना क्या होगा, वो आएगा नहीं. हाँ, Keith Gill. Okay, Keith Gill. He was the guy, very popular guy, and this guy started a particular, क्या बोलते हैं, आंदोलन. ठीक है, आंदोलन बोलना बेस्ट रहेगा, जैसे CJP हुआ ना वैसे आंदोलन. And he said that ये जो hedge funds है ना, ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, हम लोग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कम थोड़ी हैं, हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ये लोग हमेशा बर्बाद करते रहते हैं. इतना बढ़िया कंपनी है गेम स्टॉप, इतना रियल एस्टेट है, और इसको फालतू में शॉर्ट करके यहाँ पहुंचा दिए. चलो जागो, दिखा देते हैं इन लोग को हम लोग का पावर. समझ रहे हो, ये सब वीडियोस आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहा है, रेडिट पे हो रहा है, ठीक है. वॉल स्ट्रीट बेट्स नाम का एक पर्टिकुलर वन सेकेंड सोशल मीडिया चैनल है जहां पे हो रहा है. तो सोशल मीडिया पूरा छा गया क्या, कि अपने लोग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है ना, अपने को अपना पावर दिखाना चाहिए. वी शुड शो द पावर ऑफ स्टूडेंट्स. Okay, power of this thing, power दिखाना चाहिए. And what happened is that a cult started, and there was a plan masses में, plan मतलब openly plan कि चलो ये लोग जो short कर रखे हैं इनको खेला दिखाते हैं. तो everybody started buying GameStop. So GameStop was purchased because of number one, it's a turnaround story, maybe turnaround story. Number two, because अगर अपने buy किए सब जन, तो stock का दाम क्या होगा, बढ़ेगा. तो जो लोग सेल कर रखा है शॉर्ट, तुम सपोज सेल कर रखा है $3 पे और दाम हो गया $20, $17 का लॉस, $40, $37 का लॉस, $60, $57 का लॉस. कहीं ना कहीं तो तुमको बाई करना पड़ेगा कवर करने के लिए. जैसे लोग बाई करते हैं शेयर कि दाम बढ़ेगा, पर गिर जाता है तो कभी ना कहीं तो बेचना पड़ता है. तो वैसे ही सेल कर रखा है तो तुमको बाई करना पड़ता है. उसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज. क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्क्वीज. हम शॉर्ट किए थे यार, पर एकदम फंस गए बिकॉज स्टॉक क्या भागा. और जब शॉर्ट स्क्वीज होता है तो सारे के सारे जन जो शॉर्ट कर रखे हैं वो लोग बाई करने के लिए भागते हैं. तो ये लोग तो बाई कर रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और वो लोग भी बाई करने लग गए जो शॉर्ट स्क्वीज थे. ठीक है, तो मोर ड्रामा टुक प्लेस. जहां पे भी ड्रामा होता है वहां 1% डेफिनेटली कम्स इनटू द पिक्चर. हु इज दैट पर्सन? इलॉन मस्क. वो छोड़ेगा ही नहीं, वो ड्रामा के लिए है कि भाई मेरा भी ट्विटर है, यहां पे भी आओ ड्रामा करो. तो ही ऑल्सो केम इनटू द पिक्चर और ज्यादा. एंड it so happened that the stock in January 2021 went up by 1600%. The stock went up in January 2021, sorry मैं 2021 बोल दिया गलती. In January 2021 एक मंथ में the stock went up by 1600%, 1600%. यानी कि $3-5 से $20, $40, $50, $100, $200, $300 शेयर का दाम हो गया. तो वो जो $300 हो गया, वहां से एक नया वर्ड कॉइन हुआ, मीम स्टॉक. व्हाट? मीम स्टॉक. तो मीम स्टॉक मीन्स अ स्टॉक विच इज रनिंग एज ड्यू टू सोशल मीडिया वायरल पोस्ट्स. ठीक है, तो एंड ड्यू टू रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स, ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स. दे शोइंग देयर पावर टू द बिग गाइज. अंडरस्टूड? उसमें फ्यूल टू द फायर डालने के लिए वो जो बिग गाइज थे जिसको गुस्सा हो रहा था ना, लॉस हो रहा है, तो एक दो और स्टेटमेंट पास कर दिए कि तुम लोग क्या हो, अभी देखो दाम गिरेगा. बोला हम लोग क्या है, चलो दिखाते हैं. ठीक है, इट हैपेंड. So the person who was buying at $300, the retail guy, why was he buying the stock? He was not buying the stock, believe me, because he feels that the stock is worth $300.
He also knows the stock is not worth $300. But he was buying because he believes that this mania will continue. तो बहती गंगा में हाथ धो लें, यानी कि मैं $300 बाई कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं 350 पे बेच दूंगा किसी को कल, तो क्यों नहीं फायदा कमाएं? अगर $300 पे भी अपवर्ड रिदम चल रहा है तो आई एम बाइंग नॉट बिकॉज इट इज वर्थ 300, आई एम बाइंग बिकॉज आई नो दैट somebody else will buy from me at $350, and that becomes your basis of buying. You are not doing any economic analysis, fundamental analysis, cash flow analysis of the stock, whatever the CFA curriculum teaches. You are just buying because there is a frenzy going on, which happens in the case of Bitcoin, which happens in the case of gold, which happens in the case of all asset classes, because ultimately it's a question of human psychology. ठीक है? तो so they have mentioned that 3 तरीके से लोग वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक्स का, 3 तरीके से. One is नाइव स्टोरी बेस्ड वैल्यूएशन, भोला भाला स्टोरी बेस्ड वैल्यूएशन जिसपे कोई लॉजिक नहीं है. और नाइव स्टोरी बेस्ड वैल्यूएशन में 2 मेथड्स है. वन इज मीम स्टॉक, द अदर इज कल्ट इन्वेस्टिंग. कल्ट इन्वेस्टिंग का एग्जांपल था मेरा वो एलिजाबेथ, दैट हैड बिकम कल्ट इन्वेस्टिंग, या स्पेसएक्स, इट इज कल्ट इन्वेस्टिंग. एंड मीम स्टॉक का एग्जांपल था गेम स्टॉप, वे फंडामेंटल्स हैव नो रोल टू प्ले. ठीक है? द CFA इंस्टीट्यूट फर्मली बिलीव्स एंड टाइम हैज शोन दैट if you are a long-term investor, you don't get into these things of meme stock investing and cult investing, because sooner or later you will find the yatharth, the reality, and ultimately it will come down. If you believe that you are a great momentum person and तुम पहले से पता चल जाएगा कि एक पार्टी चल रहा है, नाइट पार्टी, और उसमें पुलिस कब आने वाला उसके पहले तुम निकल जाएगा, इतना बुद्धिमान है तो मजा कर लो जाके. And those who believe themselves to be extra smart, they can do so, but otherwise there will be a stampede and you will be crushed. Better you don't go to the party at all, because there are several other bhajans going on elsewhere which you can perhaps participate in. So naive investing, cult investing is something written in the text, okay, and it's good that it's written in the text. जो fact है वो तो बोलना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा there is something called absolute valuation, जो अपने बहुत जोरों से करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर में हिंट होगा, नेक्स्ट चैप्टर में जोर से किया जाएगा. एब्सोल्यूट वैल्यूएशन यानी कि कोई कंपनी है, अगर उसको बाई करते हैं तो सब फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होगा. देयर इज अ कंपनी, इफ वी बाय द कंपनी, व्हाट विल बी द फ्यूचर कैश फ्लोज, डिस्काउंट द फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्टॉक. DCF, discounted cash flow, because why are you buying the stock? To enjoy the future cash flows ना. तो सपोज यू से दैट आई विल होल्ड द स्टॉक फॉर 5 years, तो 5 years का फोरकास्ट करो क्या होने वाला है और 5 साल के बाद किस दाम पे बिकेगा, एंड देन पुल इट टुडे, प्रेजेंट वैल्यू, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक. दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूएशन. और एक थर्ड टाइप का वैल्यूएशन होता है विच इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूएशन. रिलेटिव माने कंपेरेटिव वैल्यूएशन. कंपेरेटिव मींस इफ हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज अ EPS of 40, has an EPS of 40, and it is trading at 1200. Hindustan Unilever HUL has an EPS, earnings per share, of 40, and it is trading at 1200. So it is trading at 30 times. It is trading at 30 times earnings. 1200 by 40, 30 आ गया होगा आपके माइंड में. तो Procter and Gamble, P&G, same business, Procter and Gamble, if it has an EPS of 25, if it has an EPS of 25, it should trade at what price? 750. अगर Procter and Gamble का EPS 25 है, 25, तो उसका दाम क्या होना चाहिए? 750 ना. 25 into 30, that's common sense. सर हिंदुस्तान यूनिलीवर का दाम चल रहा है 1200, उसका EPS 40 है, 30 गुना, 30 टाइम्स. तो Procter and Gamble सर वो भी मल्टीनेशनल, यही मल्टीनेशनल है, वो भी FMCG, ये भी FMCG. ठीक है? तो इसका दाम अगर 25 चल रहा है तो उसका दाम होना चाहिए परहैप्स 750, 750. आई होप यू आर गेटिंग द फिगर्स. मैंने कुछ भी ग्रेट फिगर्स नहीं बोला जिसके कारण कोई कैल्सी फैल्सी चाहिए. बट Procter and Gamble is trading at 590. Procter and Gamble is trading at 590. माने 590 by 25 is what? 590 divided by 25 is what? Yes, can I have it from you? 590 by 25 is what? हाँ? 23.6 times. So Procter and Gamble is trading at 23.6 times earnings. Procter and Gamble is trading at 23.6 times earnings. मैं एक बार 23 बोल रहा हूँ for the fluency of it. But HUL is trading at 30 times earnings.
HUL 30 गुना अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 23 गुना अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहा है. सो आई विल से दैट प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज कंपैरेटिवली अंडरप्राइस्ड. Procter and Gamble is comparatively underpriced and HUL is comparatively overpriced. Comparatively underpriced, comparatively overpriced. मेरे को नहीं पता HUL का दाम सही है क्या, मेरे को नहीं पता 1200 सही है क्या. मेरे को ये पता है अगर HUL का दाम 1200 है तो Procter and Gamble का दाम 590 से ऊपर होना चाहिए था. मेरे को ये पता है कि अगर Procter and Gamble का दाम 590 है तो HUL का दाम 1200 से कम होना चाहिए था comparatively. You are saying that I don't know whether 1200 is correct or 590 is correct. I am making a relative statement. ठीक है तो therefore I will go long on Procter and Gamble and short on HUL. I will go long on Procter and Gamble and short on HUL. मैं एक को long करूंगा दूसरे को short. Why should I go only long Procter and Gamble? Because I am not saying Procter and Gamble is underpriced. I am saying Procter and Gamble is relatively underpriced. What is it? Relatively underpriced. I am not saying it is underpriced. इट इज रिलेटिवली अंडरप्राइज्ड. तो जिसके रिलेशन में अंडरप्राइज्ड है आप उसको शॉर्ट करो, इसको लॉन्ग करो. दैट्स कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूएशन. दैट्स कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूएशन. ठीक है तो सिंस रिलेटिव वैल्यूएशन इज वेरी इजी, सिंस रिलेटिव वैल्यूएशन इज वेरी इजी बिकॉज यू ऑल आल्सो अंडरस्टूड राइट नाउ. मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ गया ईपीएस के बेसिस पे. ओके वो कमा रहा है 40 रुपया, दाम उसका 1200 है. ये कमा रहा है 25 रुपया, दाम 750 होना चाहिए, पर दाम चल रहा है 590. इसका मतलब अंडरप्राइज्ड है रिलेटिवली. इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो 30 times is very popular, or so many people keep on using it in college and everywhere because it's a abusive shortcut. It's an abusive shortcut. Abusive because it has been misused and abused. People find scapegoats in terms of talking about P ratio. The CFA Institute respects these price multiples but goes into the depth of how actually these price multiples should be used for valuation. Okay, the main stuff is DCF, discounted cash flow, present value of the future cash flow. Yes, we also use relative valuation, but we use it in a very, very fundamental and logical manner rather than just moving around the way in which many people in the market do it. So how many types of valuation are there? 3. One is naive or story-based, narrative-based valuation. The second one is absolute valuation. And the third one is relative valuation. Absolute valuation का separate chapter है LM6 PV of the cash flows, because वहाँ समझाएगा cash flow कैसे forecast करेंगे, कैसे PV करेंगे. Relative valuation का chapter है LM7 और ये है LM number 5 which is introduction to equity valuation. समझ गए? तो ये अपना initial warm up type था जहां पे मैंने क्या क्या बोला वो बता रहा हूं because everything is getting recorded on the Granular app such that if I were to try to dictate each and everything, which I can easily do, but that will make the class boring. 45 minutes to 1 hour dictation में जाएगा अभी जो मैंने सारा बोला उसको, and at the same time उससे time waste होगा. तो Granular has taken everything which I said. It will compile the notes. मैं केवल outline chart करके बताऊंगा कि मैंने क्या बोला, so that you have something written and you have to refer to the other notes on the drive to see सर ने क्या क्या बोला था. What did I start the class with? Elizabeth वाला story. ठीक है, और easy story था. Story is easy to remember कि वो बोले थे एक drop blood से सारा टेस्ट हो जाएगा. Valued at billions of dollars. It was cult investing. What investing? Cult. You believe in a product, you believe in some person, personality, and there's a cult created. That's cult investing. जैसे बाबा लोग का cult होता है ना वैसा. ठीक है. और जो second है, whenever I say something ना बाबा लोग का cult ये वो, you will find that मैं हमेशा बोल रहा हूँ don't judge me कि सर बाबा में believe नहीं करते हैं. I just say things at that time criticizing the BJP government or criticizing Rahul Gandhi. At that time जो work करेगा मौका पे चौका. Understood? There's no reason of getting into my personality कि what does sir believe in. ठीक है तो I am too introvert for the purpose of sharing my internal thoughts. और education में करना भी नहीं चाहिए वो चीज. Anyways, तो I talked about cult investing via that example. Then I talked about ये जो social media का investing, which is meme stock. What? Meme stock, which was GameStop. अब किसी भी पर्सन को फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्ट है, उसको लगा कि सर थोड़ा आप हड़बड़ी बोल दिए, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, मेरे को और बढ़िया से मीम स्टॉक के बारे में जानना है. ऑब्वियसली यू आर मोस्ट इनकरेज्ड. फॉर एग्जाम्पल यू कैरी आउट द रिसर्च, यू कम आउट विद अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन
कि हमने ये पढ़ा था, really like the stuff. Okay, at the very beginning of my journey in finance, if I'm understanding these things, I would be perhaps prevented from risking my money and clients' money into all this. Are you understanding my point? So in a humble manner, you can come out with a LinkedIn post on the same. Correct? Because that has to be done. You have to come out with a LinkedIn post for the purpose of creating your network and profiling. If you don't, and there's a separate satisfaction which will come. और पहले आना difficult था because sir हम English कैसे बनाएंगे? अब तो तुम thought दो ना AI को. Let it draft and be very humble in putting the post. Correct? Let people comment on the same. Okay, your hook last में could be that which stocks in India do you think are right now under cult investing? Please comment. तो पूरा सोशल मीडिया को ग्राफ कर रहे हो ना, ठीक है, व्हाटएवर. तो आई स्टार्टेड विद दीज टू एंड देन आई सेड अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट रिलेटिव वैल्यूएशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ HUL एंड व्हाट, HUL एंड PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल. मैंने बीच में शॉर्ट सेलिंग का मतलब बताया, गेम स्टॉप बताते समय शॉर्ट सेलिंग का मतलब जोर से अपने काम आने वाला है. तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब सपोज आपको पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, यू वांटेड टू रिसर्च, डू रिसर्च. ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर अपना कई जगह मौका मिलेगा जहां शॉर्ट सेलिंग के ऊपर और डीपली बोलने का मौका मिलेगा. ठीक है ना. लेट्स राइट समथिंग डाउन, नॉट द इलैबोरेट पार्ट ऑफ इट बट द ब्रीफ पार्ट ऑफ इट. लिखो प्लीज. ओके, अ स्टूडेंट ओवर हियर ऑन द लाइव क्लास, चिराग गुप्ता इज सेइंग बिटकॉन्ड लिखा है, पता नहीं क्यों ये नाम से होगा, हो सकता है कॉन माने कॉनिंग ना. तो बिटकॉइन on Netflix is another good documentary for crypto hype scam. He is sharing with you all. Okay, कि अगर आपको Netflix पे बिटकॉइन देखना हो तो ठीक है. थैंक यू चिराग. देखो वार्म अप स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर वार्म अप से. वार्म अप, और वार्म अप के अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, कल्ट इन्वेस्टिंग. Point number 1, cult investing. Dash 19-year-old Stanford dropout. 19-year-old Stanford dropout. Elizabeth Holmes. 19-year-old Stanford dropout. Elizabeth Holmes. Coming out with a fast, cheap and convenient, fast, cheap and convenient finger prick method of blood testing. Finger prick method of blood testing. Dash valued at billions of dollars. Valued at billions of dollars. Valued at billions of dollars, because topic चल रहा है valuation, तो valued at billions of dollars. ठीक है. dot turning out to be a fraud. Turning out to be a fraud. जेल में है. अभी भी जेल में है क्या नहीं पता, पर मेरे ख्याल से है. The sentence was long. Turning out to be fraud. और उसके साथ उसको साथ देने वाला एक इंडियन था. We should be proud of it कि ब्रेन चलता है अपना. I don't remember his name, Ramesh, whatever his name was, but there was an Indian, okay, who was with her. In case you are interested in the story, मेरे को इतना story याद नहीं, I just know the drift of it. ठीक है. Next, point number 2. Point number 2, meme stock. MEME, meme stock. Dash a physical brick and mortar video gaming company. A physical brick and mortar video gaming company. A physical brick and mortar video gaming company by the name of GameStop, GAMESTOP, by the name of GameStop. You can put an open and close inverted comma. By the name of GameStop. Heavily shorted, SHORTED,
तो यहाँ से आपको शॉर्टेड का फीलिंग आएगा. यू कैन पुट अ सर्कल, किसके बारे में और स्टडी करूंगा. हेविली शॉर्टेड बाय हेज फंड्स, हेविली शॉर्टेड बाय हेज फंड्स, डॉट डॉट डॉट. presenting a story of turnaround, प्रेजेंटिंग अ स्टोरी ऑफ टर्न अराउंड. किस्सा ये टर्न अराउंड होके ऑनलाइन वीडियो गेमर का सबसे बड़ा कंपनी बन जाएगा, जैसे अमेजॉन बना था ई कॉमर्स में. तो लोग को नया अमेजॉन दिख रहा है ये. ठीक है, क्या प्रेजेंटिंग अ स्टोरी ऑफ टर्न अराउंड. ठीक है, प्लस टर्न अराउंड प्लस शॉर्ट स्क्वीज. शॉर्ट स्क्वीज कि अपने इनको कॉर्नर करेंगे तो सबके सब बाई करेंगे, अपने आप दाम बढ़ेगा. शॉर्ट स्क्वीज, ये शॉर्ट वाले लोग फंस जाएंगे. सारे हेज फंड्स विल रश टू बाय. इफ वी कैन मेक द स्टॉक गो अप देन दे विल रश टू बाय, द स्टॉक विल फर्दर गो अप. प्लस रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स मेनिया, प्लस रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स मेनिया, प्लस रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स मेनिया डैश all happening through social media, dash all happening through social media, all happening through social media, through social media. एक पॉइंट बोलना भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्स्ट में बोला हुआ है तो आई शुड शेयर. फर्स्ट वाला स्टोरी इज नॉट शेयर्ड इन द टेक्स्ट, वो मेरी तरफ से एलिजाबेथ वाला. सेकेंड वाला स्टोरी इज देयर इन द टेक्स्ट एंड दे हैव सेड समथिंग वेरी नाइस. ये कंपनी जो गेम स्टॉप है, जो कि डूब जाता 2020-21 में, एक्चुअली डूब जाता अगर ये सोशल मीडिया कल्ट मीम स्टॉक चालू नहीं होता. ये कंपनी ने क्या किया सुनना. जब इसका शेयर का दाम $300-350 हो गया, $3 से $350, तो उस केस में इतना बुद्धिमान है कि उससे मैं आईपीओ ले आया, पब्लिक इश्यू, यानी शेयर्स बेच दिया, और शेयर्स बेच के $1 बिलियन कलेक्ट कर लिया. अब बैलेंस शीट में $1 बिलियन आ गए आपके. तो अगर आप बुद्धिमान हो, जिसका ने नाम लिया था कोहेन, जो उसके मैनेजमेंट में आ गया था, कोहेन च्यू वाला. ठीक है, तो अब यू हैव कोहेन हु हैज ब्रेन्स बट ही नीड्स मनी कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ टर्निंग अराउंड द कंपनी, एंड दिस गाय नाउ गेट्स इनटू अदर थिंग्स टू मेक द कंपनी सक्सेसफुल. फॉर एग्जाम्पल, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, दे बॉट अराउंड a 10% स्टेक इन eBay. eBay का तो नाम सुना होगा. They bought around a 10% stake in eBay and did several other things, because of which the company came out of the red into green. Okay, millions of dollars of profit and so on and so forth. Of course, $300 का valuation was still not justified, but yes, company survive कर गया, thrive कर गया, आज के डेट भी है. समझ गए? That goes to show that हम लोग जो बोलते हैं ना कि financial markets are a function of fundamentals, माने markets जो है वो तो डिपेंड करता है रियल इकोनॉमी में क्या हो रहा है. जैसे मैं बोलूंगा तुम कितना कमाओगे फ्यूचर में, तुम्हारा वर्थ क्या होगा, डिपेंड करता है तुम्हारे में कितना पोटेंशियल है. इट्स अ सही स्टेटमेंट. तुम्हारा क्या इनकम होगा फ्यूचर में, वेल्थ क्या होगा, इज अ फंक्शन ऑफ योर पोटेंशियल. बट कई बार इफ यू आर एबल टू रेज मनी बिकॉज ऑफ सम लक और वॉट एवर, मे बी एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिंग दैट मनी योर पोटेंशियल कुड बी शेप्ड. कि सब वो तो पैसा आ गया तो हम बहुत कुछ कर लिए जो हम करना चाहते थे, अगर वो पैसा ही नहीं आता तो हम कैसे करते. Are you getting the picture? कि मतलब it's both ways out. Financial market shape fundamentals. ठीक है, there's a very क्या बोलते हैं pronounced theory written upon it कि मतलब both ways out है, called the theory of reflexivity. Okay, by a person whom India hates a lot, George Soros. Okay, theory of reflexivity. मतलब वंडरफुल तरीके से वो लिखा है उसके बारे में. once again मैं क्यों बोलता हूँ ये, because out of so many students that we teach, मैं हमेशा बोला हूं कि आई एम नॉट द टीचर हु विल से दैट आई टीच फॉर द मासेस. आई वांट दैट नोबडी शुड फील दैट दे आर द मासेस. एवरीबडी हैज द पोटेंशियल टू बिकम द क्लासेस. इन केस आपको लगता है यार हम एवरेज स्टूडेंट हैं, तुमको भी मौका मिलना चाहिए. सो देयर आर पीपल हु रीड, हु रिसर्च, एंड देयरफॉर आई डोंट होल्ड बैक व्हेन आई एम स्पीकिंग. थियरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, किसी को बुक डॉक्यूमेंट्री पढ़ना है तो थियरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी जॉर्ज सोरोस का. आई एम नॉट प्रेजिंग दैट गाय, बट दैट गाय हैज इंटेलेक्ट व्हिच इज नेगेटिव टुवर्ड्स इंडिया. आई हेट हिम लाइक एनीथिंग, बट उसका ब्रेन्स जो है, जो बुद्धिमानी से बोला है, वो तो कैप्चर किया जा सकता है ना. तो दैट व्हाट्स हैपेंड विद गेम स्टॉप. फाइनेंशियल मार्केट की वजह से वो कंपनी बच गया और थ्राइव कर रहे हैं. ये लोग आईपीओ ले आए. सो देयर आस्क यू क्वेश्चंस इन द मल्टीपल चॉइस. इन फैक्ट लेट्स सी इफ यू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्ली.
Let me come to this question. No, not this file. ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करेक्ट देना है, ठीक है? An analyst estimates that the intrinsic value of Meridian Technologies shares to be MYR 38.5. It may be Malaysian ringgit. You hardly care. Don't look at those three letters at all. कौन सा करेंसी है? 38.5 स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए. The shares are currently trading at MYR 44.2. शेयर का दाम 44.2 चल रहा है. होना चाहिए 38.5. It is trading at 44.2 on the Kuala Lumpur exchange. Based solely on this comparison, which of the following conclusions is most appropriate? Take your time. शेयर का दाम होना चाहिए 38.5 इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर का दाम चल रहा है 44.2. ओके, तो बोल रहा है बेस्ड सोनली ऑन दिस कंपैरिजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ऑप्शन नंबर ए, द शेयर्स आर अंडरवैल्यूड एंड इन्वेस्टर्स शुड इंक्रीज देयर एक्सपोजर. इन्वेस्टर्स को और बाई कर लेना चाहिए. Option number B, shares are overvalued and issuer may consider repurchasing the outstanding shares. जो कंपनी है उसको खुद को अपना शेयर्स बाई कर लेना चाहिए. Option number C, shares are overvalued and the issuer may consider issuing new shares. Answer is clear cut. What? C. Share overvalued है, 44.2 is overpriced. दाम होना चाहिए 38.5 और दाम चल रहा है 44.2. It's overpriced ना, महंगा है, महंगा. एंड इस दाम पे अगर इन्वेस्टर का बात करें अपने लोगों को, ये शेयर कोई हालत में बाई नहीं करना चाहिए. अगर है तो बेच देना चाहिए, नहीं है तो शॉर्ट करना चाहिए. इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इन्वेस्टर को कोई हालत में बाई नहीं करना चाहिए. अगर है तो बेच देना चाहिए, रेड्यूस एक्सपोजर. और अगर नहीं है तो किसी से लेके बेच देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे में कितना जिगरा है. दम भी तो होना चाहिए सब करने का. और कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी कैन डू ओनली टू थिंग्स, या तो इश्यू शेयर्स या रीपर्चेस शेयर्स, बाई बैक. तो अगर ऊपर दाम चल रहा है तो क्या कंपनी को बाई करना चाहिए 44.2 पे या सेल करना चाहिए? सेल. द कंपनी शुड इश्यू शेयर्स एंड दैट्स व्हाट GameStop डिड एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट GameStop डिड. GameStop ने एग्जैक्टली वही किया. तो कोई भी कंपनी जब उसको लगता है कि शेयर का दाम बढ़ा हुआ है, जैसे लास्ट ईयर हुंडई ने किया. ओके, लास्ट ईयर इंडिया रिसीव्ड एन FDI ऑफ $900 बिलियन. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने क्लास 11-12 में सुना होगा. Investment in plant and machinery and all that stuff. $900 billion इंडिया में FDI आया, which is a big number. But 800 and something billion dollars इंडिया से चला गया. वो जो चला गया because our markets was booming and these guys, okay, the Suzuki of Maruti, जो Suzuki है, उसके बाद Hyundai वाला, इन्होंने सब ने IPO मार्केट को बढ़िया से लपेटा है for the purpose of divesting the stake, because ऊपर दाम पे कौन नहीं बेचेगा. So IPOs become very popular at that time. One of the things stated is that historical crises have shown that जब बड़ा बड़ा IPO आता है ना, उसके बाद बाजार क्रैश करता है. ऑलरेडी SpaceX का आ गया और OpenAI और Anthropic लाइन पे है. So it is believed that that's like the epitome of what's going to happen. Maybe उसके बाद जाके the entire AI markets will crash. ठीक है, I said maybe. We can say opinion. किस opinion पे किसको act करना है, that's a function of his own बिलीफ एंड ओन रिस्क एपेटाइट एंड मनी. अंडरस्टूड. तो जब भी दाम बढ़ता है तो कंपनीज लोग शेयर इशू करते हैं जिससे पैसा उठा ले ऊपर दाम पे. ऑलराइट, ठीक है, कंटिन्यू करते लिखना. फुल स्क्रीन कर दो. So we have written about these two companies. So we have written about cult investing and we have written about meme stock. ठीक है. उसके बाद point number 3. Point number 3, methods of valuation. Methods of valuation. What am I dictating? जो मैंने शुरू में करवाया ना अभी 45 minutes 1 hour में, वो मैं briefly cover कर रहा हूँ. Methods of valuation. Methods of valuation में 3 arrow निकाल दो. Left, राइट एंड सेंटर. लेफ्ट साइड में नाइव, NAIVE, नाइव और स्टोरी बेस्ड वैल्यूएशन. नाइव और स्टोरी बेस्ड वैल्यूएशन. नाइव का हिंदी आई थिंक होता है भोला भाला, मासूम. हाँ, मासूम वैल्यूएशन.
ओके, नाइव और स्टोरी बेस्ड वैल्यूएशन। एंड बीच वाला हो गया अपना एब्सोल्यूट वैल्यूएशन। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन। और जो राइट साइड में है दैट इज रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन, रिलेटिव वर्ड अगर समझ में नहीं आए तो कंपेरेटिव वैल्यूएशन। ओके, रिलेटिव और कंपेरेटिव वैल्यूएशन, रिलेटिव और कंपेरेटिव वैल्यूएशन। जो फर्स्ट वाला तुमने लिखा है ना, नाइव और स्टोरी बेस्ड वैल्यूएशन, उसके नीचे 2 बुलेट लिख दो। फर्स्ट बुलेट मीम स्टॉक, सेकेंड बुलेट कल्ट इन्वेस्टिंग। जो नाइव वैल्यूएशन था उसके नीचे मीम स्टॉक एंड कल्ट इन्वेस्टिंग, मीम स्टॉक कल्ट इन्वेस्टिंग। उसके बाद आई जस्ट रिमेंबर अ पर्टिकुलर डायलॉग वे बैक इन 2006-7 टाइप के पीरियड में इंडियन स्टॉक मार्केट वॉज बूमिंग लाइक एनीथिंग and infrastructure development was taking place. Airports were being constructed and renovated, and that time there were some stocks like DLF. Okay, DLF जो airports पे इतना ज़्यादा active अभी भी, और हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, ये सब कंपनीज। एंड वहाँ पे people used to talk about this way. I'm speaking in Marwadi just to give the feel. Okay, एक जन दूसरे को बोल रहा है ऑन द बड़ा बाजार स्ट्रीट कि भाई जी थे जानो हो, जो हवाई जहाज है ना आपका सर से ऊपर से उड़ से। अरे बोला जरा इतने ज़्यादा एयरपोर्ट्स हो जाएंगे, इतने ज़्यादा एयरप्लेन्स होगा ना कि आपके सर के बगल से एयरक्राफ्ट जाएगा, और इतना जोर का DLF का ग्रोथ होने वाला है। सो दैट टाइप ऑफ स्टफ स्टार्ट्स व्हेन द मेनिया हैपेंस। दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ मेनिया व्हिच वाज हैपनिंग इन द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, एनीवेज बीच वाला क्या लिखे आपने, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के नीचे लिखना है PV of the future cash flows. PV of the future cash flows discounted at an appropriate rate. PV of the future cash flows discounted at an appropriate rate. PV of the future cash flows discounted at an appropriate rate. Discounted at an appropriate rate. Akshima Jain is talking about Shark Tank. What I remember is that ये मामा अर्थ जो है ना, होना सा मामा अर्थ, तो ये बंदे का नाम शायद वरुण है, आई डोंट रिमेंबर दिस गाय। इसकी जो वाइफ है उसको शार्क टैंक में बैठा दिया फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द कल्ट ऑफ मामा अर्थ इन्वेस्टिंग, एंड द सेम फेथ हैपेंड, बट देन द स्टॉक हैड later on when it fell down, it had done well after that. But a lot of can't happen in that stock also in the Indian environment. Anyways, क्या लिखा, present value of the future cash flows discounted at an appropriate rate. Yeah, like those students who have joined us recently, suppose today's first class या last week join किया है या 2 दिन पहले join किया है, we have in equity completed 3 chapters. One was two chapters ना. One was LM4 chapter number 4. The other is chapter number 12. We are going in a certain manner. Chapter 4, chapter 12. And उन chapters में हमने क्या complete किया है, appropriate discount rate. क्या लिखा आपने language? PV of the future cash flows discounted at appropriate rate. वो जो appropriate rate है ना, जिससे present value करना चाहिए, that is what we have covered in chapter number 4 and chapter number 12, just to give you the big picture. And वो appropriate rate ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो such that everybody is on equal footing, except the fact that टीचर का जो टोनिंग है, जो लोग सुनते जा रहे हैं, मेरे को एक टोनिंग बैठ गया होगा मेरा, और जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो टोनिंग बैठने में टाइम लगेगा। ठीक है, द अप्रोप्रिएट रेट इज व्हाट वी हैव डन इन चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 12। ओके, जस्ट टू शेयर विथ यू। ठीक है, राइट साइड में जो रिलेटिव वैल्यूएशन था, रिलेटिव वैल्यूएशन में फिगर्स लिख लो। HUL having an EPS is okay with everyone, earnings per share. HUL having an EPS of 40 and market price 1200. Market price 1200 implies
a P ratio, price earnings ratio, implies a P ratio, price earnings ratio of 40 times, implies a 30 times, implies a price earning ratio, P ratio of 30 times, 30 times, वहीं पे full stop. So P&G, Procter and Gamble, so P&G having an EPS of, so P&G, Procter and Gamble having an EPS of 25 should trade at around 750, should trade at around 750, full stop. But if it trades at 590, but if it trades at 590, but if it trades at 590, 590, comma, it is relatively underpriced, it is relatively underpriced. अंडरप्राइस्ड के लिए बहुत सारा वर्ड होता है, अंडरप्राइस्ड, अंडरवैल्यूड, ट्रेडिंग चीप, तीनों वर्ड होते हैं. इट इज रिलेटिवली अंडरप्राइस्ड एंड HUL इज रिलेटिवली ओवरप्राइस्ड. इट इज रिलेटिवली अंडरप्राइस्ड एंड HUL इज रिलेटिवली ओवरप्राइस्ड, रिलेटिवली ओवरप्राइस्ड. डैश go long on P&G, dash go long on P&G, go long on P&G मतलब बाई करो उसको, and short on HUL, go long on P&G and short on HUL. ये जो करते हैं ना, एक स्टॉक को लॉन्ग दूसरे स्टॉक को शॉर्ट, उसको बोलते हैं पेयर ट्रेडिंग. क्या बोलते हैं? पेयर ट्रेडिंग. पेयर ऑफ स्टॉक्स है, उनको बाई सेल करना. इट इज नॉट अलाउड टू बाय म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डू दैट. ओके, the hedge fund guys can do that. Anyways, तो ये अपने अभी तक कंप्लीट किए चैप्टर का. अब ब्रेकडाउन करते हैं कि सर चैप्टर में क्या पार्ट्स है. चैप्टर में 3 पार्ट्स है, डिस्कस कर रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली यू नो द वे ऑफ टीचिंग इज दैट व्हेन आई एम डिस्कसिंग समथिंग आई वांट टोटल पार्टिसिपेशन. टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? अगर नंबर्स का डिस्कशन चल रहा है तो आपका कैलसी से पार्टिसिपेशन, अगर रिसर्च का डिस्कशन चल रहा है तो फोन पे पार्टिसिपेशन, कि आप फोन पे साथ में रिसर्च करते जा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं. बिकॉज समहाउ व्हेन अ पर्सन इंगेजेस इन समथिंग ना, रिदम ज्यादा आता है क्लास में और समझ में बेटर आता है. व्हेन यू आर पैसिव लिसनर, कहीं ना कहीं नो मैटर मैं जितने जोश से बोल रहा हूं, यू विल नॉट लाइक द क्लास दैट मच. व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, द रिदम कम्स. सो योर पार्टिसिपेशन कैन बी न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल डिस्कशन हो रहा है. योर पार्टिसिपेशन कैन बी रिसर्च ओरिएंटेड. ठीक है, तो जो लोग लाइव कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं साथ साथ में. क्लास में भी एंटरटेन्ड है कि आप साथ में करो. ओके, व्हेन थिंग्स आर गोइंग ऑन. एंड ऑब्वियसली मेंटल पार्टिसिपेशन तो है ही. आफ्टर दैट आई विल समराइज द स्टफ लाइक आई डिड, एंड वंस अगेन वी गो टू द नेक्स्ट डिस्कशन. बीच में वी विल डू क्वेश्चंस जिसपे टोटल पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड. ठीक है, तो सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट. ओके, दैट्स द टीचिंग दिस थिंग. आई डोंट टेक अ टेंशन दैट मैंने सारा एक एक चीज लिखा दिया ना जो मैं बोला था, बिकॉज नाउ ग्रेनोला or Claude can do it. ठीक है, there is no problem at all with that. So we were discussing the parts of the chapter. Chapter में 3 parts है, सुनना please. Part 1 में ये लोग डिस्कस किया price versus value. Price versus value. That's the first part of the chapter. बहुत अच्छा डिस्कशन है, काफी सारा मैंने उसका आइडिया दे दिया, but there's a good discussion left. We cannot do a mistake in this. आने से उसका राइट होना ही चाहिए क्वेश्चन. The second part of the chapter is जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, इट इज अनऑब्जर्वेबल. प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज ऑब्जर्वेबल बट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज अनऑब्जर्वेबल. लेट्स स्टे विथ इट फॉर सम टाइम. कोई भी स्टॉक का मैं दाम पूछूंगा आपसे, अभी आप अपने फोन पे चेक करके बता दोगे ना. किसी भी स्टॉक का आपकी दाम पूछता हूं मैं कि मारुति का दाम क्या है, यू विल टेल मी इन 2 मिनट्स क्या दाम पे अभी ट्रेड हो रहा है. इसका मतलब प्राइस इज व्हाट? ऑब्जर्वेबल. बट वैल्यू, मारुति का वैल्यू क्या होना चाहिए? इज विजिबल और इनविजिबल? इनविजिबल. इट इज इनविजिबल. तो वैल्यू इज अनऑब्जर्वेबल, प्राइस इज ऑब्जर्वेबल. तो सर वो जो वैल्यू अनऑब्जर्वेबल है, वो वैल्यू को क्या कोई इंडिकेटर्स है जो उस वैल्यू को इंडिकेट करता है कि शायद ऐसा है, शायद इतना है? आप बोल रहे हैं अनऑब्जर्वेबल है, बट क्या कोई इंडिकेशन, क्या उसका कोई शैडो है? शैडो इंडिकेटर्स है. तो पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर में दे डिस्कस अबाउट 3 इंडिकेटर्स ऑफ वैल्यू.
3 इंडिकेटर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू विच इज इनविजिबल, उसका 3 इंडिकेटर्स, वो पार्ट 2 में लोग डिस्कस करते हैं। एक तो प्राइस ही है, बोल रहा क्या पता वो जो वैल्यू इनविजिबल है वो प्राइस ही है, स्टॉक का दाम जो चल रहा है वो सही है, वही वैल्यू होना चाहिए। पॉसिबल या इम्पॉसिबल? पॉसिबल। तो एक तो प्राइस ही हो गया। दूसरा हो गया अकाउंट्स में, अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट बनाते हैं अपने, एवरीबडी गो टू द बैलेंस शीट मेंटली। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में व्हाट्स द फर्स्ट आइटम? कैपिटल, शेयर कैपिटल। व्हाट्स द सेकेंड आइटम? रिजर्व्स। तो इन दैट केस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों को मिला के शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। व्हाट? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर बुक्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर अकाउंटेंसी, एज पर बुक्स। ठीक है, तो बोल रहा है दैट मे बी कंसिडर्ड टू बी एन इंडिकेटर ऑफ वैल्यू। Book value of equity may be considered to be an indicator of value. Now the point is that in 99% of the situation, book value is the worst indicator of value. You should, while studying the CFA program, have the worst of respect towards accountancy. Okay? However, knowing fully well that that worst disrespect is going to help you in getting data about the company. Accounting का काम केवल ये है कि अपने को डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है, और वो डेटा को हम लोग फिर क्लीन करेंगे, विच इज एफएसए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और क्लीन करके उसको यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। बट अदरवाइज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अकाउंटेंसी शुड नॉट बी देयर, बिकॉज अदरवाइज यू टेक फिगर्स फॉर ग्रांटेड। देखिए सर कंपनी ने इतना एबिडा रिपोर्ट किया है, वही तो प्रॉब्लम है ना, कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इट्स लाइक तुम सीएफए क्लासेस कर रहे हो, उसका टेस्ट हो रहा है, वो तुम ही चेक कर रहे हो और तुम ही पेरेंट्स को दिखा रहे हो मम्मी मेरा ये रिपोर्ट है। तो अगर तुम ही चेक करोगे और तुम ही अपना रिपोर्ट दिखाओगे तो रिपोर्ट कैसा आएगा ये पता ही है तुमको। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन अकाउंटेंसी। द मैनेजमेंट इज रिपोर्टिंग इट्स परफॉर्मेंस एंड दे आर द वन हु आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट। ऑब्वियसली इट इज बायस्ड और इट मे बी बायस्ड, इट्स 100% बायस्ड। ऑल्दो मैं एकेडमिकली नहीं बोल पाऊंगा बट प्रैक्टिकली तो इट्स 100% बायस्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। ठीक है, एंड देयरफॉर द डिसरिस्पेक्ट व्हिच आई सेड, the accounts required only for the raw material part so that we can work upon it with other information, otherwise it's not required. तो मैं बोला बुक वैल्यू जो आता है बैलेंस शीट में, दैट्स एन इंडिकेटर ऑफ वैल्यू, बुक वैल्यू। और एक चीज होता है एंटरप्राइज वैल्यू। कौन सा वैल्यू? एंटरप्राइज वैल्यू। आई विल नॉट इलैबोरेट इट राइट नाउ, वो भी इंडिकेटर ऑफ वैल्यू होता है। सो देयर आर 3 इंडिकेटर्स ऑफ वैल्यू। वन इज मार्केट कैप, कंपनी का प्राइस, सेकेंड इज बुक वैल्यू, थर्ड इज एंटरप्राइज वैल्यू। Market cap, book value, enterprise value. There are 3 indicators of that invisible stuff. What is that invisible stuff? Intrinsic value. जो intrinsic value है वो invisible है, उसके लिए 3 indicators है, that is part 2. That is part 2. The good thing is that मोटा मोटी जो 3 indicators में जो 2 का आइडिया आपको है, पहला तो प्राइस ही बोल रहे हैं, क्या आइडिया लोगे? दूसरा क्या बोले? बुक वैल्यू, बैलेंस शीट का आइडिया आ गया, केवल तीसरे का आइडिया नहीं आ पाया, कौन सा? एंटरप्राइज वैल्यू। सही है, दैट्स पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। और थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर बोलता है कि सिंस यू ऑल आर गोइंग टू गो इनटू चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, लेट अस गिव यू एन आइडिया ऑफ ऑल द वैल्यूएशन मेथड्स। पार्ट 3 एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन का पूरा आइडिया पार्ट 3 में है। ठीक है, द आइडिया ऑफ ऑल द वैल्यूएशन मेथड्स विच वी आर गोइंग टू यूज। लिखना प्लीज, पैरा चेंज। तो पैरा चेंज और पैरा चेंज का लिखना है chapter layout, chapter layout। तो चैप्टर लेआउट में पार्ट 1 प्राइस वर्सेस वैल्यू, प्राइस वर्सेस वैल्यू। Part 2 indicators of intrinsic value, indicators of intrinsic value, indicators of intrinsic value। Part 3 different methods of equity valuation,
डिफरेंट मेथड्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन, सारे के सारे मेथड्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन. Para change. Heading part 1, price versus value. Price versus value. तो इसके अंदर आई नीड योर पार्टिसिपेशन, देयरफॉर आई एम डूइंग इट इन अ डिफरेंट मैनर. लिखो प्लीज. पॉइंट नंबर 1, वार्म अप. पॉइंट नंबर 1, वार्म अप. वार्म अप के अंदर imagine we are standing towards the end of 2020. Imagine we are standing towards the end of 2020. Full stop. The stock under consideration is GameStop. The stock under consideration is GameStop. ओके, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूं. सो कुमारी अपराजिता, यू आर द ओनली पर्सन जिसको प्रॉब्लम हो रहा है कांस्टेंट बफर का, और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. ठीक है, तो आप इतना सफर करने के बजाय मेरे ख्याल से ड्रॉप आउट कर जाइए क्लास से, और ड्रॉप आउट करके आप बाद में इसका वीडियो देख लीजिएगा. बिकॉज बाकी सब जन के लिए इट इज फाइन. You are constantly facing a problem. I am pained as a result of it, but I can't do anything about it. It's better you drop out of the class. हाँ, वो 2-3 दिन का बात अलग है. दर्शन करना मत बोल रहा है मेरे को भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्लास को अगर प्रॉब्लम होता तो सब जन लिखते, बट सब जन तो रिप्लाई कर रहे हैं फटाफट क्वेश्चंस का. तो इट विल ऑलवेज हैपन. लाइव क्लास का एक ड्रॉबैक है. लाइव क्लास जब भी होगी तो उस केस में समवेयर अराउंड 5% ऑफ द क्राउड को प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ लोकल इश्यूज और वॉट एवर इश्यूज. But we therefore do not stop. We continue based on 95% of the crowd. This is a given. जब आप लोग भी क्लास करोगे कभी कभी, ओके, तो इन दैट केस ऐसा होगा. उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. चलिए लिखिए, क्या किया आपने. द स्टॉक अंडर कंसिडर लिखा है क्या मैंने. द स्टॉक अंडर कंसिडरेशन इज GameStop. द स्टॉक अंडर कंसिडरेशन इज GameStop. डैश. नेक्स्ट लाइन. हेडिंग है फंडामेंटल इन्वेस्टर ए. फंडामेंटल इन्वेस्टर ए. तो मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर ए के पहले फंडामेंटल वर्ड लगा के मैं उसको इज्जत कर रहा हूं कि बेइज्जत कर रहा हूं. इज्जत दे रहा हूं मैं. आई एम गिविंग माई रिस्पेक्ट. फंडामेंटल इन्वेस्टर ए, तो आई एम गिविंग यू अ क्लू दैट दिस गाय, he does valuation based on the present value of the future cash flows. He studies the company, studies the industry, studies the economy, comes out with forecast कि कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा, कंपनी का मार्जिन्स क्या होगा, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कंपनी कैश फ्लो कितना लाएगा. ये बहुत ज़्यादा मेहनत से कंपनी के डीप में जाके उसका फोरकास्ट करता है, विच इज द पर्पस ऑफ द CFA करिकुलम. ठीक है, तो फंडामेंटल इन्वेस्टर ए, आई हैव गिवन हिम रिस्पेक्ट ओवर देयर. देखो, फंडामेंटल इन्वेस्टर ए डैश. He feels GameStop is doomed. GameStop is doomed. GameStop is doomed. मैं भूल के GameStop बोल दिया, भूल के. GameStop is doomed. हाँ, GameStop है ना कंपनी का नाम, तो GAMESTOP. ठीक है, वैसे जो भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, सो लॉन्ग यू अंडरस्टैंडिंग स्टॉक का नाम बोल रहे हैं. GameStop is doomed. ... He is aged 50. He is aged 50. एक पर्सन 50 करीब साल का है. He is aged 50 and therefore his time horizon is not very long. His time horizon is not very long. Dash. He is highly risk averse. AVERSE. highly risk averse. ब्रैकेट में फट्टू.
there are many people who do our classes. Okay, people from foreign universities, okay, studying in whether Cornell or wherever. At the same time, people who are say studying in Bihar, Patna or some, and they have different levels of expertise on English language. CFA program is not about English language. Therefore, you will find me changing my dialect in between, where I go from a sophisticated level to an unsophisticated level. I do it purposefully because I'm trying to cater to all audience. ठीक है ना? Yeah. So don't judge me that way कि ऐसा क्यों लिखा रहे सर? क्या लिखा है मैंने? Highly risk averse bracket Puttu bracket close. And therefore his required rate of return, and therefore his required rate of return is high. Required rate of return is high dash 16%. 16% per annum. यानी अगर ये कहीं पैसा लगा रहा है स्टॉक में तो इसको 16% per annum रिटर्न चाहिए. Are you understanding? So if you tell him that 500 रुपया आने वाला है एक साल बाद, he is willing to pay today X plus 16% equal to 500. He will put X today such that X into 1.16 equal to 500. So X is equal to 500 by 1.16 na? 500 divided by 1.16, and this is called present value. When you divide something by 1 plus R, you are doing discounting present value. Okay, for anybody who has joined new. Yeah, so क्या लिखा है 16%. He has the following forecast. He has the following forecast for GameStop. He has the following forecast for GameStop. ठीक है, तो कॉलम बनाओ. फर्स्ट कॉलम ईयर्स, दो कॉलम है. फर्स्ट कॉलम ईयर्स, सेकेंड कॉलम कैश फ्लो पर शेयर. सेकेंड कॉलम कैश फ्लो पर शेयर. इनफैक्ट थर्ड कॉलम में कर दो प्रेजेंट वैल्यू एट 16%. थर्ड कॉलम और एक कर दो प्रेजेंट वैल्यू एट 16%. तो दो कॉलम ही लिखाना चाहिए था, पर तीसरा मैं टाइम बचाने के लिए किया. ईयर्स, कैश फ्लो पर शेयर और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एट 16%. करा आपने? ईयर्स में 1 2 3, शो द स्क्रीन. ईयर्स में 1 2 3. ओके, ईयर्स में 1 2 3. उसके बाद सॉरी, तो ईयर्स 1 2 3. कैश फ्लो जो है डॉलर्स में है, दैट इज $1.2, $2.6, $4.9. इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं 16% पे. 1.2 डिवाइड बाय 1.16 इज व्हाट? यस प्लीज. 1.2 डिवाइड बाय 1.16 इज व्हाट? 1.034. 2.6 divided by 1.16 square is what? 2.6 को दो साल पीछे टाल रहे हैं. He wants to earn 16% per annum ना. तो 2.6 by 1.16 square 1.932. 4.9 divided by 1.16 cube. 4.9 divided by 1.16 cube. 4.9 divided by 1.16 cube. Yes, please. 3.14. ठीक है, कोई बात नहीं. टेबल के बाद also he expects to sell the share. He expects to sell the share at $40 at t equal to 3. He expects to sell the shares at $40 at t equal to 3. 3 साल बाद वो बेच देगा. Therefore, present value of 40 is equal to 40 divided by 1.16 cube. Present value of 40 is 40 divided by 1.16 cube. Are you fine with this math?
40 3 साल बाद मिलने वाला, उसको भी टाल लिए 3 साल पहले। 40 by 1.16 क्यूब, व्हाट इज इट? 25.63। ठीक है, 25.63। नेक्स्ट लाइन, therefore according to Mr. A, intrinsic value is equal to PV of future cash flows. According to Mr. A, intrinsic value equal to PV of future cash flows. So 1.034 plus 1.932 plus 3.14 plus 25.63. 1.034 plus 1.932 plus 3.14 plus 25.63. What is it? 31.73 approx. $31.73 अप्रॉक्स। तो उसके अनुसार स्टॉक का वैल्यू $31.73 होना चाहिए। उसका खुद का फोरकास्ट है सर, उसने ईयर 1 में कैसे निकाला कैसे नहीं निकाला, वी हैव नॉट गॉन अहेड, वहां नहीं पहुंचे। वो रेवेन्यू फोरकास्ट किया होगा, कॉस्ट फोरकास्ट किया होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 31.73 इज द पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। पैरा चेंज। Momentum investor B, momentum investor B, momentum investor B, फुल स्क्रीन कर दो। momentum investor B dash, he is a 20-year-old guy, he is a 20-year-old guy, 20-year-old guy dash willing to take risk, willing to take risk, रिस्क लेने तैयार है, willing to take risk ब्रैकेट जिगरा, willing to take risk ब्रैकेट जिगरा, comma has a long investment horizon, has a long investment horizon, has a long investment horizon, full stop. His required rate of return is therefore low. His required rate of return is therefore low. His required rate of return is therefore low. Dash 9% per annum. 9% per annum. Full stop. He has the following 10-year forecast. He has the following 10-year forecast. ईयर्स ऐसे लिख रहा हूं और डायरेक्टली कैलसी में करेंगे टाइम बचाने के लिए। ईयर्स 1 to 10 कैश फ्लोज पर शेयर, ईयर्स 1 to 10 कैश फ्लोज पर शेयर। तो कैश फ्लोज उसके अनुसार से होगा 3, 4.5, 7, 10, 14, 19, 27, 30, 35, 40। ये उसका फोरकास्ट है। ठीक है, ये इसका फोरकास्ट है और टेबल के नीचे लिखना है, टेबल के नीचे लिखना है ऑल्सो हिज एस्टिमेट इज P10 इक्वल टू P10 is equal to $800. His estimate is P10 equal to $800. उसका एस्टिमेट है 10 साल बाद $800 स्टॉक का दाम हो जाएगा। तो therefore his estimate of intrinsic value equal to PV of cash flows। ओके, तो अपने जब कैलसी करने वाले हैं तो हम लोग जब 10th डालेंगे ना तो 840 डालेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड। मैं C1 में 3 डालूंगा, C2 में 4.5, C3 में 7, C4 में 10, ऐसे करते करते C10 में आई वोंट पुट 40, आई पुट 40 प्लस 800, 840, because 40 is also at the end of 10th year, 800 is also at the end of 10th year. Are you understanding?
So Calci में there is a mode by which we can feed C1, C2, C3 to C10 and then Calci will calculate given 9% discount rate. Many of you are aware of the same. Please move ahead. There's no question of waiting for me. And those who are not aware of the same, they can at least pay attention to what I'm doing or try to do by themselves along with me. I'll be slow. Sorry. So I'm going to CF mode. CF कहाँ है? Second के बगल में. CF second clear work. फिर से कर रहा हूँ. CF सेकेंड क्लियर वर्क. तो स्क्रीन पे CF0 है. CF0 कुछ है ही नहीं हमारे, हमको तो C1 से फीड करना है. तो आई गो टू एरो डाउन. अब स्क्रीन पे C01 है. तो जो C01 है वो था 3. सो 3 एंटर. एंटर करने के बाद एरो डाउन. तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है 3 कितने बार. बाय डिफॉल्ट एक बार ही है, तो हम लोग इसलिए इसको स्किप करते हैं स्टेप को. एरो डाउन. अब C02 क्या था? 4.5. 4.5 एंटर. आई एम डूइंग डबल एरो डाउन जिससे सीधा C3 पे पहुंच जाऊं. मेरे को हेल्प चाहिए. C3 क्या था? 7 एंटर. डबल एरो डाउन. C4 क्या था? 10 एंटर. डबल एरो डाउन. C5 क्या था? 14 एंटर. डबल एरो डाउन. C6 क्या था? 19 एंटर. डबल एरो डाउन. C7 क्या था? 27 एंटर. डबल एरो डाउन. C8 क्या था? 30 एंटर. डबल एरो डाउन. C9 क्या था? 35 एंटर. डबल एरो डाउन. और C10 में 840 पुट कर रहे हैं. 840 एंटर. दैट्स इट. सारा फीड कर दिए. अब कैल्सी में एनपीवी का बटन प्रेस करना है. नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो एनपीवी में आई, पता नहीं 9 इसको कैसे पता चल गया, पहले से 9 था क्या, आई डोंट नो. तो 9 एंटर. ठीक है. डिस्काउंट रेट 9. एरो डाउन. मेरा तो बहुत उल्टा पुल्टा है, तो आई थिंक माई कैल्सी इज मैल फंक्शनिंग. आप लोग कहाँ गया होगा? हाँ सीपीटी, सॉरी. 440.22. सॉरी सीपीटी करना भूल गया था. उसके बाद कंप्यूट. सीपीटी माने कंप्यूट. तो $440.22 आया है. आया आप लोग क्या? हाँ ठीक है. 440 इज द आंसर दैट यू ऑल हैव गॉट. एवरीबडी 440. तो पीवी ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू 440 अप्रॉक्स. वी कैनॉट राइट नाउ वेट फॉर किसका आया किसका नहीं आया. द फैक्ट दैट यू हैव द फिगर्स रिटन, यू कैन ट्राई द कैल्सी एट होम टू सी दैट आपका 440 आ जाए. तो $440 इज द प्रेजेंट वैल्यू वी हैव गॉट. ठीक है. $440. CFA इंस्टीट्यूट में कभी भी इस तरह से 10 साल का कैश फ्लो निकाल के कैल्सी वाइज नहीं करता है, बिकॉज दे बिलीव दैट किसी से ये करवाना इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट. 10 साल का कैश फ्लो देखे और बोलना निकाल, तो तुम्हारे बुद्धि का टेस्टिंग जरा सा भी नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? सो दे आर नॉट इनटू इलॉजिकल टाइम वेस्टिंग एट ऑल. मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल का कैश फ्लो. दे डोंट वांट टू अननेसेसरली कॉर्नर यू इनटू स्टूपिड मैकेनिकल एंड स्वेट वाला स्टफ. ठीक है. अप्लाई योर ब्रेन, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो $440 आया. तो फंडामेंटल इन्वेस्टर ए के अनुसार शेयर का दाम वाज व्हाट? क्या आया था? अरे ए का क्या आया था वैल्यू? 31 पॉइंट. ठीक है. लेट मी कॉल इट 32. तो ए के अनुसार वैल्यू वाज $32. बी के अनुसार वैल्यू वाज $440. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनीबडी इज सरप्राइज्ड कि सर दो वैल्यू कैसे हो सकता है, so it is totally wrong. The genesis as to why right now, अभी जब बाजार चल रहा है तो एक स्टॉक को एक जन बाई कर रहा है और एक जन सेल कर रहा है, तभी तो ट्रेड हो रहा है. If you have a trading app on your phone and you have some funds, there is any share you can go and right now plug a buy. आप बटन प्रेस करोगे बाय से एक शेयर बाई करोगे. वो बाई तभी होगा जब कोई और सेल किया है. जब कोई और सेल किया है तो सेम टाइम पे एक जन बाई किया एक जन सेल किया है. तो जो बाई किया है उसको लग रहा है कि स्टॉक अंडर प्राइस्ड है. जो सेल किया है उसको लग रहा है स्टॉक ओवर प्राइस्ड है. उसको क्यों लग रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. क्या पता वो वैल्यूएशन किया होगा, क्या पता वो स्टोरी सुना होगा, क्या पता वो र्यूमर सुना होगा, विक्टोरिया में से वो वॉक करने गया होगा और कोई भाई जी उसको बोले होंगे बढ़िया स्टॉक है. यू नेवर नो, देयर कुड बी एक्स नंबर ऑफ रीजंस.
क्या दे? There could be X number of reasons as to why that is happening. So let's understand. जो intrinsic value true है, the true intrinsic value is not known to anyone. All of us are having our own perception of the true value. And therefore Mr. A का जो आंसर आया था 32, it is called perceived intrinsic value. मैं word use नहीं कर पा रहा था, perceived. Mr. B का जो आंसर आया था perceived कहां से word आता है? Perception. You don't know something, you have a perception towards it, and your perception is different from my perception. Your perspective is different, my perspective is different. You are more risk averse, I am less risk averse. I have more positive prospects about the company, you have less positive prospects about the company. So sir, what is the market price then? The market price is a collective but differing result of those perceptions. यानी मिलियंस ऑफ पीपल जो ट्रेड कर रहे हैं उन सब का परसेप्शन सेम है कि अलग है और उन सब के परसेप्शन को मिला के जो एक कंसेंसस आया, दैट इज द मार्केट प्राइस. तो मार्केट प्राइस डज नॉट रिप्रेजेंट मिस्टर ए का परसेप्शन और मिस्टर बी का परसेप्शन, इट रिप्रेजेंट्स द परसेप्शन ऑफ ऑल ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर. ठीक है, दैट इज द मार्केट प्राइस एंड इट इज विजिबल, कलेक्टिव विजडम, दैट्स द मार्केट प्राइस. एंड योर इंडिविजुअल perception can say that नहीं दाम ये होना चाहिए. Accordingly, your jigra will tell you whether you should act upon it or not. ठीक है? So problem that happens with people who come out with financial models and valuation on LinkedIn और चाप के डालते हैं is that उनका पैसा तो जा रहा नहीं है. सुंदर सा मॉडल क्लॉट से बना लिए, ऐसा सुंदर देखने में लगेगा, वाह. ठीक है, कई मम्मी पापा थोड़े गले बले उनको दिखा दिए तो बोलेगा छोरो क्या कर रहे हो है, और व्हाट इज ही डूइंग यार, ही हैज डन मार्वेलस, क्या रिपोर्ट बनाया है. ठीक है, इफ दे आर नॉट अवेयर एंड दैट्स व्हाट अदर्स विल डू, वाओ मैन ब्यूटीफुल मॉडल. अब थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज सब जन करने लग गए, बिकॉज खुद का पैसा नहीं लग रहा है ना. वाओ जो भी है ना, ते अपना पैसा लगा ना, जान जाए सारा वाओ. एक बार अपना पैसा लगा तो तब जानेंगे वाओ. ठीक है, तो सो दैट टेक्स इट इनटू अ डिफरेंट पेरिफेरी. सो व्हेन वी बिकम एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स, दैट टाइम we are ultimately advising clients whether the stock is worth purchasing or not. उस पे client का money is at stake. We got to be very, very diligent in our effort. We can still make a mistake because nobody knows the future. But आप on an average mistake कर रहे हो, that is wrong ना. मैंने 10 स्टॉक का फोरकास्ट किया था, मैं 6, 7, 8 स्टॉक में रॉन्ग हो रहा हूं, तो इससे बढ़िया मैं हेड टॉस ही कर देता. फर्स्ट स्टॉक आया, हेड आया तो बाय, टेल आया तो सेल, सेकंड स्टॉक, एंड यू डू इट. एंड 10 स्टॉक में से तब भी तुम बहुत बार राइट बोल देगा, 2-3 बार 4 बार. रोज ट्राई कर सकते हो. आज सुबह 10 स्टॉक निकालो और सोचो कौन सा स्टॉक आज ऊपर जाएगा, हेड टॉस करो एंड यू विल फाइंड अरे यार बैठ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी डोंट वांट लक बिकॉज लक इज नॉट सस्टेनेबल, वी वांट स्किल्स. और अगर स्किल्स है तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू एक्चुअली जेन्युइनली ऑन एन एवरेज find out more stocks which will perform rather than those stocks which will not perform. And one thing is very good about equity markets, performance में sky is the limit. ऊपर की तरफ स्टॉक कहीं पे भी जा सकता है, नीचे की तरफ zero. The best part about long term investing in a country like India is that when we invest in stocks, ऊपर की तरफ sky is the limit, नीचे की तरफ it is what? Zero. There is no minus. तुमने 40 रुपये का स्टॉक बाई किया, जीरो हो सकता है, पर 40 का स्टॉक बाई किया 400, 4000, 4 लाख भी हो सकता है. ऑफकोर्स 4 लाख बोलेगा होता नहीं है, स्टॉक स्प्लिट के बाद तो वो इफेक्ट वही आ गया ना. सो दैट इज वाई माने द गेम ऑफ ऑल दोज पीपल लाइक राकेश झुंझुनवाला एंड ऑल दैट हु हैव earned so much of wealth and return primarily from the markets, and that's the endeavor of everybody doing the CFA program कि वो करके दिखाएंगे. ठीक है, एंड उसके लिए you can't follow these YouTubers who will just come out with any model whatsoever which has no depth at all. आप उनको पढ़ा सकते हो after studying with us, understood, and of course having a practical bent of mind. So perceived value समझ में आया? Perceived value is a perception of that which is invisible, and everybody will have the same perceived value at different perceived value, different. So for some the stock is underpriced, for some others the stock is overpriced, and that creates a trading platform. And ultimately the price right now is a collective opinion, although different opinion of different investors who are trading. That is price versus value का debate. ठीक है, लिखो please.
Para change. The true intrinsic value, the true intrinsic value, the true intrinsic value or fundamental value of a stock, the true intrinsic value or fundamental value of a stock equal to present value of the future cash flows, present value of the future cash flows discounted at the appropriate rate, present value of the future cash flows discounted at the appropriate rate, present value of the future cash flows discounted at the appropriate rate, full stop. However, it is invisible, okay, unobservable, invisible, जो भी, it is invisible, full stop. Para change. Different investors will have different estimates of future cash flows. Different investors will have different estimates of future cash flows. Different investors will have different estimates of future cash flows, comma, different risk tolerance level, different risk tolerance level, different risk tolerance level, and therefore will arrive at different estimates of intrinsic value, will arrive at different estimates of intrinsic value, will arrive at different estimates of intrinsic value known as perceived value. Different estimates of intrinsic value known as perceived value. Different estimates of intrinsic value known as perceived value. Perceived value, underline, perceived value. Perceived value. Para change case 1. If market price, if नहीं होगा, if हटा दो, market price bracket P0 less than perceived intrinsic value, अपने उसको लिख रहे हैं IV0 जिससे नोटेशंस में इजी हो जाए. P0 लेस देन IV0, ये केस 1 है. P0 लेस देन IV0 लिख दो. द स्टॉक इज अंडरप्राइज्ड. द स्टॉक इज अंडरप्राइज्ड. सर सस्ते में मिल रहा है स्टॉक. द स्टॉक इज अंडरप्राइज्ड. स्टॉक इज अंडरप्राइज्ड से दो एरो लेफ्ट साइड में इन्वेस्टर डिसीजन, राइट साइड में इश्यूअर डिसीजन. लेफ्ट साइड में इन्वेस्टर डिसीजन, राइट साइड में इश्यूअर डिसीजन. तो लेफ्ट साइड में जो इन्वेस्टर डिसीजन है उसके अंदर लिख दो गो लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, दैट इज बाय द स्टॉक. गो लॉन्ग दैट इज बाय द स्टॉक, दैट इज इंक्रीज एक्सपोजर. अलग अलग वर्ड्स लिखा रहा हूं बिकॉज वो मल्टीपल चॉइस पे वो सेंटेंस होगा ना. गो लॉन्ग दैट इज बाय द स्टॉक, दैट इज इंक्रीज एक्सपोजर. ऑलरेडी बाई कर रखे तो और बाई कर लो. इंक्रीज एक्सपोजर. राइट साइड में इश्यू अ डिसीजन. रीपर्चेस दैट इज बाय बैक द स्टॉक. 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 समझ गए. कंपनी को क्या करना चाहिए उस समय जब दाम गिरा हुआ है तो अपना स्टॉक बाय बैक कर लेना चाहिए. रीपर्चेस. केस 2 फटाफट ऑब्वियस है. P0 ग्रेटर देन IV0. P0 ग्रेटर देन IV0. तो उस केस में दो एरो
स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड के बाद 2 एरो, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड के बाद 2 एरो। लेफ्ट साइड में इन्वेस्टर डिसीजन, राइट साइड में इश्यूअर डिसीजन। लेफ्ट साइड में इन्वेस्टर डिसीजन, राइट साइड में इश्यूअर डिसीजन। इन्वेस्टर डिसीजन में गो शॉर्ट, गो शॉर्ट, कॉमा सेल द स्टॉक। शॉर्ट सेल और सेल में डिफरेंस होता है। शॉर्ट माने जो चीज नहीं है वो तुम बेच रहे हो, सेल माने जो है वो बेच रहे हो। कॉमा रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस एक्सपोजर। और राइट साइड में इश्यूअर में इश्यू शेयर्स, राइट साइड में इश्यू शेयर्स। तभी तो इतने सारे स्टार्टअप कंपनीज का आईपीओ आया, जोमैटो एंड द लाइक, बिकॉज उनका वैल्यूएशन बहुत ऊपर पहुंच गया बाय मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग। दे थॉट दैट स्टॉक मार्केट बढ़िया चल रहा है, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे डू। ठीक है, तो टू मी, जिसको एक दिन का होता है ना कि एक दिन आईपीओ में पैसा लगा देते हैं, फर्स्ट डे दाम ऊपर खोलेगा और पैसा बन जाएगा, दैट इज नॉट द एटीट्यूड विच अ सीएफए गाय शुड हैव। बिकॉज आईपीओ इज अ गेम जहां पे स्मार्ट knowledgeable people are offloading their stock to you, gullible भोला भाला इंसान। वो जिनको स्टॉक के बारे में पूरा पता है वो तुमको स्टॉक बेच रहा है और तुमको चेप रहा है और तुम चिपवा रहे हैं। हो सकता है फर्स्ट डे तुम कमा लो, यार जानता है यहां लगाया था आईपीओ में, उसका लग गया लॉटरी, तो लॉटरी का टिकट ही बाई करो नीचे जाके, तमिलनाडु गवर्नमेंट का लॉटरी का टिकट, वो भी तो लग सकता है। आईपीओ होने के बाद when the stock crashes after 6 months, 9 months, and you believe the fundamentals of the stock are good, that is the time to perhaps get into the stock, not along with the investor frenzy. There could be some outliers or exceptions. Anyways, that's a talk for another day. So यहाँ तक अपने किए हैं, ठीक है। That was the first class that किए, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए, एक ही क्वेश्चन करवाया था। I think I will share in the question file around 10 very simple questions which I would like you to do. Remember, only if you exercise your brain, things will work out. If you ride on my brain, it will not work out. तो मैं 10 क्वेश्चन शेयर करूंगा जो अज्यूम करूंगा कि आप करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ओके, और एक चीज, नेक्स्ट वीकेंड मैंने संडे इवनिंग को आई हैव टू गो टू दिल्ली एंड रिटर्न बैक ऑन ट्यूसडे, सो वी विल मिस आउट द क्लास ऑन मंडे। तो बिकॉज ऑफ विच इस वीकेंड में, माने इस वीकेंड में सैटरडे को, ऑल्दो 15th अगस्त है, but I'll announce some extra classes, not face to face, live online, because obviously my staff will also not be working, just to make up for what we are going to lose next week. ठीक है, तो जस्ट मैं इंडिकेशन दे दिया हूँ। ओके, कल आई डोंट नो, हो सकता है ये वाला मैं इतना कम कवर किया हूँ कि कल शाम को मैं इसी का क्लास रख लूँ। ठीक है, आई विल अनाउंस दैट। एंड फ्राइडे को यू रिमेंबर, जो लोग भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक क्लास अभी तक क्यूएम का करवाया है, नए चैप्टर का, ठीक है, दैट टुक प्लेस ऑन फ्राइडे। अगर LM5 था क्या वो, तो LM5 क्लास 1 करके कोई भी फ्राइडे वाले क्लास में आ सकता है। LM5 क्लास 1 करके एनीबडी कैन स्टार्ट क्यूएम, पर ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, बिकॉज फिर पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो LM5 का क्लास 2 में आप लोग को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, जो भी नए स्टूडेंट्स है, एक क्लास करके। चलो, थैंक यू, बाय।